Of the day, I, Chavi Gupta, welcome you all in today's session. In the previous session, we have discussed about that is respiration in human beings and the difference between breathing and respiration. Now, I hope that you all have understood the concept of respiration and breathing and the major difference between the both. Now, I will just need to tell you that in human beings we have lungs, but in other organisms like aquatic animals, they have gills for their respiration and breathing part. Okay, so in fishes, you can see that the fish have gills. Through that, they breathe in the dissolved oxygen and then use this oxygen to respire and to get energy. In moist animals like earthworms and snakes, they have moist skin which helps in their breathing and respiration work. Cockroaches have spiracles which work as a trachea and helps to get the oxygen from the environment, thus work and perform respiration. That was all about respiration. Now we have covered respiration and nutrition in both or nutrition in human beings and plants. Moreover, respiration in human beings and other organisms. So we get the energy, we dissolve the nutrients. Now how they are being transported to the desired sites. So the next topic is transportation and transport system in human beings. Now, transport system in human beings, the first most is the introduction part. The essential requirement of an organism is the transport of materials from the parts of the body where they are formed or taken up to other parts where they are consumed or needed or get rid of. तो ट्रांसपोर्ट मीन्स आपने जो भी न्यूट्रिएंट सिंथेसाइज किया है उसको उसके टारगेट साइट पे मूव कराना, दिस इज़ योर ट्रांसपोर्टेशन. या आपकी बॉडी में जो भी वेस्ट मटेरियल एक्यूमुलेट हुआ है उसको वहाँ से रिमूव करना, दैट इज़ ऑल्सो ट्रांसपोर्टेशन. ओके, सो दिस इज़ बेसिकली योर ट्रांसपोर्टेशन कि आप या तो जो कंज्यूम किया उसे टारगेट साइट पे मूव करा रहे हैं या फिर आपका जो वेस्ट मटेरियल इकट्ठा हुआ है उसे रिमूवल के लिए टारगेट साइट पे लेके जा रहे हैं. सो दिस इज़ नोन एज ट्रांसपोर्टेशन. दिस फंक्शन इज़ परफॉर्म्ड बाय सम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स विच फ्लो थ्रू आउट द बॉडी. अब जो ट्रांसपोर्टेशन वाला पार्ट है, ये जो सिस्टम है, वो बेसिकली कुछ फ्लूइड्स परफॉर्म करते हैं जो पूरी बॉडी में फ्लो करते हैं. एंड आपको पता है द मोस्ट कॉमन फ्लूइड दैट फ्लो इन द ह्यूमन बॉडी इज़ योर ब्लड. ठीक है, सो बेसिकली दिस इज़ अवर सर्कुलेटरी सिस्टम विच हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड and the nutrients and the waste material within the body and within the body and outside the body. ट्रांसपोर्ट सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम, तो हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम को क्या बोलते हैं, बेसिकली सर्कुलेटरी सिस्टम, बिकॉज जो भी न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में सिंथेसाइज हुए हैं वो सर्कुलेट हो रहे हैं पूरी बॉडी में. ठीक है, एंड जो वेस्ट मटेरियल हुआ इकट्ठा वो आप बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं. सो दिस इज नोन एज transport system or circulatory system in human beings. So the first system, it consists of a pumping organ, that is heart. Okay, then blood vessels we have, that is arteries and veins. Then circulatory medium, that is blood and lymph. Okay, so we in circulatory system we will be discussing about the pumping organ, that is heart, system of blood vessels, that is arteries and veins, and the circulatory medium, that is blood and lymph. And we will start in reverse order ki how blood helps in transportation of nutrients and everything, then what is the function of arteries and vein, then both of these combine together to perform very well organized structure, that is heart. So first start our blood or circulatory medium. ऑब्वियसली बात है ना, आप कुछ भी ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, ऐसा तो है नहीं कि आपने फूड इनटेक किया एंड इनटेक करने के बाद आपकी बॉडी का जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो डायरेक्टली उस साइड पे चले जाएंगे, ऐसा तो है ही नहीं. तो अब क्या करना होता है, आपको उस न्यूट्रिएंट को डिसॉल्व करना होता है ब्लड के अंदर, एंड ब्लड ही पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है. तो दैट्स वाई आवर फर्स्ट foremost circulatory medium is blood. Okay, now blood is a liquid connective tissue. Blood has a fluid matrix called plasma. blood एक liquid connective tissue है, उसके पास एक matrix है, that is your plasma, और उसमें 3 कॉर्पस है, मीन्स 3 ब्लड सेल्स हैं
जो ब्लड के अंदर डिफ्यूज हुए हुए हैं, मिक्स हुए हुए हैं. So the first we will do the functions of blood and then the types of blood cells. Okay. Now the first function क्या है ब्लड का? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस. गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है. दैट इज फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू. हमने जब रेस्पिरेशन किया था हमने क्या कहा था आपको कि ब्लड ही आपकी कार्बन डाइऑक्साइड वाले गैसेस को लेके जाता है पूरी बॉडी में. सॉरी ब्लड, हाँ ब्लड ही पूरी बॉडी में से कार्बन डाइऑक्साइड वाली गैस को लेके आता है एंड ऑक्सीजन वाली गैस को लेके जाता है. ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस हो गया आपका. नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड. इट कैरीज सॉल्यूबल एंड डाइजेस्टेड फूड लाइक ग्लूकोज. फूड का ट्रांसपोर्टेशन भी वही करेगा. क्यों? क्योंकि फूड न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में डाइजेस्ट होते हैं. ठीक है, तो अब इंटेस्टाइन से वेरियस ऑर्गन्स तक कौन लेके जाएगा? ब्लड लेके जाएगा. अब आपने न्यूट्रिएंट्स डाइजेस्ट कर लिए बट कुछ वेस्ट मटेरियल अभी जनरेट हुआ, तो उसको भी ट्रांसपोर्ट कौन करता है? आपका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स. उसको भी ट्रांसपोर्ट कौन करेगा? ब्लड करेगा. सो फर्स्ट फंक्शन इज ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, देन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड देन ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स. ना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स में क्या क्या आता है आपके? नाइट्रोजनस वेस्ट आते हैं, आर ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड फ्रॉम द टिश्यू सेल्स टू लिवर एंड फ्रॉम लिवर टू द किडनीज फ्रॉम वेयर दे आर एलिमिनेटेड आउट ऑफ द बॉडी. Now next is defense against disease. अब the fourth foremost function is defense against disease. आप सबने सुना है कि डेंगू में ब्लड चेक होता है कि कितना हीमोग्लोबिन है, कितना ब्लड काउंट रहेगी आपका, कितने WBCs हैं, कितने प्लेटलेट्स हैं. दैट वाज ऑल बिकॉज कि आपकी बॉडी में फाइट कौन कर रहा है? ब्लड फाइट कर रहा है. ब्लड में कुछ स्पेसिफिक सेल्स हैं जो फाइट करते हैं, दैट आर योर WBCs. तो वो क्या कर रहे हैं? हमें डिजीज से बचा रहे हैं. सो इट प्रोवाइड सर्टेन एंटीबॉडीज और एंटीटॉक्सिन विच कॉम्बैट द बैक्टीरिया एंड न्यूट्रलाइज देयर टॉक्सिन्स. कॉम्बैट द बैक्टीरिया मीन्स कि वो बैक्टीरिया के साथ फाइट करते हैं एंड उनकी टॉक्सिक इफेक्ट को ख़त्म करते हैं. सो ये मेजर रोल कौन परफॉर्म करता है? WBCs. दे आर नोन एज वाइट ब्लड सेल्स. इंगल्फ द, you can say it as white blood cells or white blood corpuscles, engulfs the disease causing bacteria and protect the body. that is white blood cells को protect करते हैं, हमारी body को protect करते हैं. next is कि clotting. clotting क्या होता है कि आपके body में खून को जमना है. आपने सुना ना किसी के ब्रेन में क्लॉट हो गया. वो क्लॉट क्या है कि खून जम गया है, तो वो भी कौन फंक्शन परफॉर्म करता है? ब्लड करता है. सो क्लॉटिंग में क्या होता है आपका? जैसे आपको चोट लगती है, आपको वूंड होता है, कट लग जाता है, तो वहाँ पे आपने देखा होगा एक रेड कलर की लेयर फॉर्म हो जाती है बाद में. ठीक है, वो रेड कलर की लेयर क्या है आपकी? कि वहाँ पे ब्लड आया, उसने फाइब्रिनोजन रिलीज किया एंड वहाँ से उसको स्किन को रिपेयर करा. दैट इज नोन एज क्लॉटिंग. इन केस ऑफ इंजरी and the rupture of blood vessels, blood clots on coming in contact with air and prevents the flow of blood from the wound, that is platelets. So actual clotting में कौन help कर रहा है आपका? platelets help कर रहा है. Okay, these are the functions of blood. Now कुछ more functions हैं आपके blood के, that is distribution of hormones. distribution of hormones means आपने सुना होगा कि हर एक की, आपने ads देखी होगी टीवी में कि पहले मैं छोटा था, अब मैंने ये खाया, या मैंने कोई कैप्सूल खाया, उसको खाने के बाद मैं बड़ा हो गया. दैट इज़ कि वो कैप्सूल में क्या है? आपका एक हार्मोन है जो आपकी हाइट को इंक्रीज करता है. ठीक, अब वो हार्मोन कौन ट्रांसपोर्ट कर रहा है? आपका ब्लड ट्रांसपोर्ट कर रहा है. तो डिस्ट्रीब्यूशन कौन कर रहा है? ब्लड ट्रांसपोर्ट कर रहा है. किसकी? हार्मोन्स की. द एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड. Blood transport them to their target organs and thus helps in chemical coordination. Now यहाँ पे target organs लिखा है. अब किसी किसी केस में क्या होता है कि आपने भी देखा होगा कि जनरली सबकी हाइट नॉर्मल होती है, मीन्स अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी दोनों इक्वली ग्रो करते हैं. बट किसी किसी केस में अपर बॉडी ज़्यादा ग्रो कर जाती है एंड लेग्स थोड़े कम ग्रो करते हैं, या फिर लेग्स ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं एंड अपर बॉडी थोड़ी कम ग्रो करती है. होता है ना किसी किसी की बॉडी में. दैट मीन्स कि वो टारगेट ऑर्गन से प्रॉपरली वर्क नहीं किया उन्होंने, तो वहाँ पे थोड़ी मिसफंक्शनिंग हो जाती है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज टेम्परेचर रेगुलेशन. अब आपके बॉडी में टेम्परेचर कौन रेगुलेट करता है? ब्लड. क्या करता है ब्लड? आपकी बॉडी में से हीट एब्जॉर्ब करेगा जो रेस्पिरेशन से आएगी एंड स्वेटिंग के थ्रू उसको बाहर निकाल देगा. ठीक है, सो दैट इज टेम्परेचर रेगुलेशन.
नेक्स्ट इज मेंटेनेंस ऑफ पीएच। पीएच मेंटेन करने का मतलब क्या होता है कि आप क्या देख रहे हैं कि ब्लड की भी एक अपनी पीएच होती है। जैसे हर एक एसिड की, हर एक बेस की अपनी पीएच होती है, ऐसे ही ब्लड की भी अपनी पीएच होती है। दैट इज़ अराउंड 7.2। ओके, सो एक्चुअल 7.2 7.4 के अराउंड होती है। तो उसमें प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं जो ब्लड के बफर की तरह वर्क करते हैं। बफर क्या है आपका, ये बेसिकली आपकी पीएच अगर एसिडिक है तो उसको नॉर्मल करेगा, न्यूट्रल आएगा, और अगर बेसिक है तो उसे नॉर्मल करेगा। सो दैट मीन्स कि न्यूट्रलाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करे, जो उसकी एक्चुअल पीएच होनी चाहिए उसको एज अ सप्लीमेंट की तरह वर्क करके नॉर्मल बनाता है। ठीक है, टू मेंटेन द पीएच ऑफ द ब्लड एंड द बॉडी फ्लूइड। दीज आर द फंक्शंस ऑफ ब्लड। नाउ नेक्स्ट इज प्लाज्मा। नाउ प्लाज्मा इज अ पेल कलर्ड फ्लूइड। आपने ब्लड के फंक्शंस पढ़ लिए। ब्लड के मैट्रिक्स में दो चीज़ें हैं, दैट इज प्लाज्मा एंड blood cells. Now first we will study about plasma. Plasma is a pale colored fluid which contributes 55% of blood volume. Means आपकी पूरी blood volume के accordingly 55% आपका प्लाज्मा होता है, और ये येलोइश कलर का होता है, थोड़ा पेल कलर, थोड़ा सा येलोइश कलर में हो जाता है। ब्लड प्लाज्मा इज द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड इन विच द ब्लड सेल्स आर कैरिड। बेसिकली ये आपका लिक्विड पार्ट होता है। अपने क्लास 9 में प्लाज्मा एक थ्योरी पढ़ी होगी, ठीक है। वो प्लाज्मा क्या है, वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, वो फ्लूइड कंटेंट था। सेम चीज़ यहाँ पे कि ब्लड प्लाज्मा लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का, जिसमें सारे सेल्स कैरी किए जाते हैं। ओके, प्लाज्मा कंटेन्स 90 to 92% ऑफ वाटर एंड 8 to 10% ऑफ सम इम्पॉर्टेंट सब्सटेंसेस। मेजर कंटेंट यहाँ पे वाटर का होता है एंड 8 to 10% आपका सब्सटेंसेस होते हैं जो इम्पॉर्टेंट होते हैं बॉडी के लिए। नाउ अब प्लाज्मा के कुछ मेन पार्ट्स। प्लाज्मा प्रोटीन्स मेनली एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन्स एंड फिब्रिनोजन, जो बेसिकली आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा रिक्वायर होते हैं। दीज ऑल आर प्रोटीन्स एंड फिब्रिनोजन का मेजर फंक्शन होता है कि वो आपके ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। न्यूट्रिएंट्स लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल प्रेजेंट होता है इसके अंदर। रेस्पिरेटरी गैसेस होते हैं ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, एंड एक्सक्रीटरी सब्सटेंस भी एक्सक्रीटरी मीन्स जो आपके बॉडी से वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है, वो सब्सटेंस भी प्लाज्मा के थ्रू बाहर निकलता है। दैट इज अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड एंड केरेटिनाइन। ओके, और कुछ मिनरल्स, आयंस प्रेजेंट होते हैं, दैट इज सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट इज हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगर कहीं पर हाइड्रोजन नहीं लिखा तो वहाँ पे बाय लिखा हो, दैट मीन्स कि वहाँ पे हाइड्रोजन है। एंड देन फॉस्फाइड। ओके, नेक्स्ट कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे, हार्मोन्स एंड एंटीबॉडीज। तो प्लाज्मा के अंदर ये सब कुछ प्रेजेंट होता है आपका। जो 8 to 10% इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है वो यही है आपके। ओके, नाउ नेक्स्ट वी विल डू द ब्लड कॉर्पसेल्स। दैट मीन्स द 3 मेजर ब्लड सेल्स वी हैव, दे फॉर्म 45% ऑफ ब्लड। ओके, 55% प्लाज्मा बना रहे थे एंड 45% कौन बना रहा है, आपके ब्लड सेल्स बना रहे हैं। तो 3 तरह के ब्लड सेल्स होते हैं आपके, दैट इज रेड ब्लड सेल्स और एरिथ्रोसाइट्स, वाइट ब्लड सेल्स दैट इज ल्यूकोसाइट्स, एंड ब्लड प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स। नाउ द फर्स्ट डायग्राम यू कैन सी दैट इज टॉप व्यू एंड द सरफेस व्यू। ठीक है, अब इसमें क्या है आपका, ये एरिथ्रोसाइट्स दैट इज रेड ब्लड सेल्स। नेक्स्ट यू कैन सी दैट इज WBC and that contains lymphocytes and monocytes. Okay, that is WBC. पहले हम रेड ब्लड सेल्स पढ़ते हैं। Now red blood cells, or you can say red blood corpuscles, these are biconcave disc like structures. Their number डिस्क लाइक, अभी मैंने आपको पीछे व्यू में दिखाया था जैसे आपकी डिस्क होती है, CD वाली डिस्क, वैसे दिखते हैं ये। देयर नंबर इज 5 to 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब इन ह्यूमन मेल्स। जो आपका देखते हैं कि आपके में कितना हीमोग्लोबिन कंटेंट प्रेजेंट है, दैट वाज ऑल बिकॉज ऑफ कि आपका ब्लड कितना रेड है। ठीक है, एंड फीमेल्स में 4.5 to 5 मिलियंस होते हैं। दे कंटेन आयरन पिगमेंट्स। कितना आयरन बेसिकली जो आपका ब्लड रेड दिखता है, दैट वाज ऑल बिकॉज ऑफ आयरन पिगमेंट जिसका नाम हीमोग्लोबिन है, जो रेड कलर प्रोवाइड करता है आपके ब्लड को। RBC मैन्युफैक्चर्ड होता है बोन मैरो में,
बोन मैरो क्या है आपका? बेसिकली आपकी जो बोन होती है उसके अंदर एक लिक्विड फिल होता है, दैट लिक्विड इज योर बोन मैरो, ठीक है। एंड इसी में बेसिकली आपकी सारी डिजीज फाइटिंग हार्मोन्स जनरेट किए जाते हैं। अगर आपका बोन मैरो वीक हो गया या उस पर कोई हार्म हो गया है तो आपकी बॉडी ब्लड सेल्स प्रॉपरली मैन्युफैक्चर नहीं कर पाती है, ठीक है। सो आपने सुना होगा कि कैंसर के केस में हम लोग क्या कहते हैं, बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं, बिकॉज आपकी बॉडी में ब्लड सेल्स प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे हैं। तो अगर एक एक्टिव बोन मैरो दिया जाता है आपको, प्रॉपर अच्छा बोन मैरो दिया जाता है मैचिंग का, तो वहाँ पे वर्क कर जाता है। एंड वर्क करने से वो आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनाता है एंड आपके कैंसर सेल्स को ख़त्म करने में हेल्प करता है। रेड ब्लड सेल्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन बोन मैरो, देयर लाइफ स्पेन, एक बात और कि रेड ब्लड सेल्स की लाइफ स्पेन 120 डेज होती है। सेकेंडली इनके पास कोई न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। आफ्टर 120 डेज दे गेट डिस्ट्रॉयड बाय द लिवर एंड स्प्लीन। स्प्लीन आपकी बॉडी का एक ऑर्गन है। Their small size helps in absorbing oxygen and enables them to travel in very fine blood capillaries throughout the body of a person. This was all about red blood cells. देखिए, this is a disc shaped structure. Now next we will do WBC. WBC is your white blood cells. These are nucleated amoeboid cells. Why this amoeboid? Amoeboid क्या होता है कि जिसकी शेप फिक्स नहीं है, that's why it is known as nucleated, that why it is known as amoeboid cells. nucleated कि यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है। रेड ब्लड सेल्स में कहीं पे नहीं लिखा था कि वो न्यूक्लिएटेड है, दैट मीन्स वहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं था, ठीक है। WBCs आपके दो तरह के होते हैं, दैट इज ग्रैन्युलोसाइट्स एंड अग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्यूल मीन्स कि उसमें ग्रैन्यूल छोटे छोटे दाने प्रेजेंट हैं। एंड वहाँ पे लोब्ड न्यूक्लियस, लोब इसके वहाँ पे सेक्शंस बने हुए न्यूक्लियस के, अभी आपको डायग्राम में दिखाती हूँ मैं। एंड देन अग्रैन्युलोसाइट जहाँ पे स्मूथ साइटोप्लाज्म, वहाँ पे कोई रफ सरफेसेस अवेलेबल नहीं है एंड वहाँ पे न्यूक्लियस सिंगल है, मीन्स स्ट्रक्चर्स नहीं बने हुए। जैसे आपने देखा था स्मॉल इंटेस्टाइन में अंदर कर्व्स बने हुए थे या लार्ज इंटेस्टाइन में कर्व्स बने हुए थे, दैट इज ए लोब। यहाँ पे लोब का मतलब वही है कि कर्व्स बने हुए हैं, हर एक कर्व में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है आपका, ठीक है। नाउ सी मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ पहले। देखो ये क्या है आपका, ये आपका अग्रैनुलोसाइट है, मीन्स यहाँ पे कोई ग्रैन्यूल्स अवेलेबल नहीं है। नाउ यहाँ पे ग्रैनुलोसाइट देखो, आपको यहाँ पे फर्स्ट स्ट्रक्चर दिख रहा है, सी यहाँ पे ये फर्स्ट स्ट्रक्चर जो एसिनोफिल लिखा हुआ है, ये जो फर्स्ट कर्व है एंड देन सेकेंड कर्व देन अनदर कर्व, स्मॉल सी शेप बन रहा है। ये जो सी शेप बना है कॉर्नर्स में जो कर्व्स आ रहे हैं, दैट इज अ ग्रेन्यूल। अब यहाँ पे कर्व्स बन गए तो दे क्या हो गए, लोब्ड हो गए। क्या हो गए, लोब्ड हो गए। कितने लोब्स प्रेजेंट है, दो, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज टू लोब्ड न्यूक्लियस, ओके। नेक्स्ट बेसोफिल में देखिए आप, बेसोफिल में 3 कर्व्स दिख रहे हैं आपको, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज 3 लोब्ड न्यूक्लियस। न्यूट्रोफिल में आपको 7 to 8 होता है, यहाँ पे 3 to 6 लिखा है, एक्चुअल में 7 to 8 होता है आपका यहाँ पे, दैट मीन्स कि 7 to 8 कर्व्स होते हैं, तो दैट इट इज नोन एज 7 to 8 लोब न्यूक्लियस, ठीक है। तो WBCs में 2 पार्ट्स हैं, दैट इज ग्रैन्युलोसाइट एंड अग्रैन्युलोसाइट। ग्रैन्युलोसाइट में फर्दर 3 पार्ट्स एंड दैट इज एसिनोफिल, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल्स, ओके। नाउ वी विल सी अग्रैन्युलोसाइट। नाउ अग्रैन्युलोसाइट में 2 पार्ट्स हैं, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। आपको कहीं पे भी कोई डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, नहीं है यहाँ पे कोई भी डॉट लाइक स्ट्रक्चर, एंड यहाँ पे कोई भी कर्व नहीं है आपका, सिंगल सेल सिंगल दिख रहा है आपको सब कुछ, दैट मीन्स यहाँ पे कोई भी लोब प्रेजेंट नहीं है, दैट मीन्स कि यहाँ पे लोब्ड न्यूक्लियस नहीं है, लोब्ड न्यूक्लियस नहीं है यहाँ पे, ओके। नाउ ये हमने आपको बता दिया 2 तरह के ल्यूकोसाइट्स होते हैं आपके, ग्रैन्युलोसाइट्स एंड अग्रैन्युलोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स आर कैपेबल ऑफ स्क्वीजिंग आउट ऑफ कैपिलरीज टू डिस्ट्रॉय फॉरेन मटेरियल्स। WBC क्या करते हैं, आपकी डिजीज से फाइट करते हैं, दैट मीन्स डिजीज क्या आपकी फॉरेन मटेरियल है तो उसको बाहर निकालने में हेल्प करता है। WBC ऑल्सो मैन्युफैक्चर एंटीबॉडीज विच फाइट अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग जर्म्स। एंटीबॉडीज बनाते हैं, जैसे अभी हम वैक्सीन की बात कर रहे हैं, तो वैक्सीन क्या आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज बनाएगी। हम कोरोना वायरस की वैक्सीन की बात कर रहे हैं ना, तो वैक्सीन क्या करेगी, आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज बनाएगी ताकि वो डिजीज से फाइट कर सके, ठीक।
एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यूनिटी, एंड आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी। इम्यूनिटी इज बेसिकली आपकी बॉडी जितना ज़्यादा डिजीज से लड़ती है उतना ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग बनती है, दैट इज नोन एज इम्यूनिटी। इन फैक्ट वाइट ब्लड कॉर्पसल्स आर कॉल्ड सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। वाई सोल्जर्स? बिकॉज जैसे आर्मी में सोल्जर्स होते हैं, हमें एनिमीज से प्रोटेक्ट करते हैं, सेम वे में यहाँ पे जो फॉरेन बॉडीज आ रही है, जो डिजीज़ आ रही है, वो हमारे लिए एनिमी है, एंड WBC वहाँ पे सोल्जर्स की तरह वर्क कर रहे हैं, उनसे फाइट कर रहे हैं और हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करा रहे हैं। सी दे आर मैन्युफैक्चर्ड इन बोन मैरो, यहाँ पे भी क्या लिखा है, वो बोन मैरो में सिंथेसाइज किए जाते हैं, ठीक है। सो बोन मैरो का प्रॉपर फंक्शन करना ज़रूरी है, सो दैट आपका ब्लड प्रॉपरली फंक्शन करे एंड डिजीज से फाइट करने में हेल्प करे। क्लियर? नाउ नेक्स्ट blood type is your blood platelets or thrombocyte. Now these are small disc-like bodies. These are enucleated. Enucleated is की nucleus है and are manufactured in the bone marrow. See ये भी bone marrow में ही manufacture हो रहा है and number आपका 2.5 to 3.5 into 10 की पावर 5 है बेटा यहाँ पे पर मिलीमीटर क्यूब। अब मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स क्या मेंटेन करता है, आपकी बॉडी पे कोई कट लग गया, कोई इंजरी हो गई, तो वो कौन ठीक करेगा, वो प्लेटलेट्स ठीक करेंगे। अगर आप देखो व्हेन वी गॉट सम इंजरी एंड ब्लड वेसल्स इज रप्चर्ड द ब्लड फ्लो थ्रू इट, ठीक है, ब्लड वहाँ से निकलेगा और ब्लीडिंग अगर स्टॉप नहीं होगी तो आपकी बॉडी में से एक्सेस ऑफ खून निकल जाएगा, ठीक, जिससे आपकी डेथ हो जाएगी। लाइक आपने सुना है ना, डॉक्टर्स कहते हैं कि इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, मीन्स इंटरनल ब्लीडिंग का मतलब है कि अंदर ही अंदर आपकी बॉडी में से ब्लड का लॉस हो रहा है एंड आपको वो रोकना बहुत ज़रूरी है। दैट मीन्स कि वहाँ पे ब्लड में प्लेटलेट्स प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो द ब्लड लॉस इज प्रिवेंटेड बाय फॉर्मिंग अ ब्लड क्लॉट होता तो वो रुक जाता, बट एक्सेसिव ब्लड क्लॉट होना भी गलत होता है आपकी बॉडी के लिए, विच प्लग्स द इंजरी एंड चेक्स द ब्लड लीकेज। द प्लेटलेट्स प्ले अ मेजर रोल इन फॉर्मिंग द ब्लड क्लॉट। I hope this is clear. Now see, thrombocyte देखिए आप, that is platelets, देखिए यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है आपका, so this means कि ये enucleated है, okay. Now next we will do lymph. Lymph के when blood flows into thin capillaries in some amount of plasma filters out of thin capillaries, this fluid is called interstitial fluid or tissue fluid or lymph. ना बेसिकली क्या होता है, जैसे आपने घर में चाय बनती है, जब टी बनती है तो टी को छानने के लिए आप एक छन्नी लेते हैं, दैट छन्नी इज योर सीव। तो सीव में क्या होता है, सब कुछ छन रहा है, नीचे निकल रहा है सब कुछ, ठीक। अब वो जो छन के निकल गया, दैट इज योर लिम्फ, वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है जिसको हमने लिम्फ बोला है यहाँ पे, ठीक। पूरा टी जो होता है वो आपका ब्लड था, बट जब वो छन के बाहर निकल गया, कैपिलरीज के थ्रू फिल्टर हो गया, तो दैट फ्लूइड इज नोन एज इंटरस्टिशियल फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड और लिम्फ। नाउ एज इट बाथ्स द सेल एंड लाइज आउटसाइड द सेल, लिम्फ इज ऑल्सो कॉल्ड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। नाउ सेल को पूरा डुबो के रखता है, सेल के बाहर होता है ये, तो लिम्फ को हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बोलते हैं। इसका कोई कलर नहीं होता, ये सिर्फ लिम्फोसाइट्स कंटेन करता है। ब्लड का रेड कलर है, बट लिम्फ का कोई कलर नहीं है। Unlike blood, lymph does not contain red blood cells. lymph के अंदर ना रेड ब्लड सेल्स है, ना प्लेटलेट्स है, ना प्लाज्मा प्रोटीन है। lymph एक सिर्फ फिल्टर्ड ब्लड है, समझ में आया, फिल्टर्ड ब्लड। नाउ lymph flows only in one direction, that is from tissue to heart. टिश्यू से heart की तरफ आएगा। From the intercellular space, lymph drains into lymphatic capillaries which join to form lymph vessels that finally open into large veins. सारी कैपिलरीज आपस में ज्वाइन होगी एक लिम्फ वेसल बना के, एंड देन वो बाद में लार्ज वेन में ओपन हो जाएगी। लिम्फ का फंक्शन क्या है, डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट को लेके जाता है इंटेस्टाइन से। एक्सेस फ्लूइड जो होता है आपका उसको वापस भेजता है ब्लड के अंदर। ना कुछ और फंक्शंस भी हैं आपके। लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट इन इट डिस्ट्रॉय हार्मफुल पैथोजन को डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक। इट कैरीज लिम्फोसाइट्स एंड एंटीबॉडीज होता है जो लिम्फ नोड्स से आता है ब्लड में। लिम्फ नोड्स लोकलाइज इन्फेक्शन, लोकलाइज मीन्स इसको फैला के ख़त्म कर देता है, ठीक है। मीन्स हम क्या कहते हैं, हम कभी क्या सोचते हैं कि अगर हमें शॉपिंग करनी है तो पहले हम अपनी लोकल मार्केट में सर्च कर ले, देन हम कहीं और जाएंगे।
तो सेम चीज़ यहाँ पे है कि पहले अपने लोकल एरिया में ख़त्म करता है उसको, देन आगे मूव ऑन करता है. लिम्फ नोड्स लोकलाइज इन्फेक्शन एंड प्रिवेंट्स इट फ्रॉम स्प्रेडिंग टू अदर बॉडी पार्ट्स. क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ. नाउ सी द फर्स्ट डिफरेंस इज कलर. ब्लड रेड कलर का है और लिम्फ कलरलेस है. अब इसका कंपोनेंट क्या है कि यहाँ पे ब्लड के अंदर प्लाज्मा है, एरिथ्रोसाइट्स है, ल्यूकोसाइट्स है, प्लेटलेट्स है. बट लिम्फ के अंदर सिर्फ प्लाज्मा और ल्यूकोसाइट्स हैं. अब इसके अंदर सेवरल प्लाज्मा है, प्रोटीन्स हैं और कुछ कंसनट्रेशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस है. वहाँ पे बहुत कम कंसनट्रेशन होती हैं. फ्लो ब्लड किसी भी डायरेक्शन में कैसे भी फ्लो कर सकता है, बट लिम्फ स्लोली फ्लो करता है. अब डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या है ब्लड की कि सर्कुलेशन पार्ट है कि हार्ट से बॉडी भी आता है और बॉडी से हार्ट भी जाएगा. बट लिम्फ में क्या है, सिर्फ बॉडी से हार्ट की तरफ जाएगा ये. ओके, this is all about blood or circulatory system. That's all for today. Please copy all the notes from the video. If you have any query, please contact me. That's all for today. Thank you.